Okay, techniques of differentiation. This is the second part of our chapter number 2. Here we will be discussing the techniques of differentiation. So we will not be using the derivative by definition here. Rather, we will be using the techniques of differentiation. So that means we have some formulas. If you have a constant function, so the derivative d over dx, I already told you that it's a derivative. So d over dx mean ke derivative of c. So d over dx c mean ke this notation is same. So derivative of any constant number, which we already have proved in the first part, derivative by definition that it's 0, but here we have to directly use it. So derivative of any constant function, any constant number is 0. And if the constant is with some function like x or x square, anything, so the derivative of that one will be c will be out of that derivative, and then you have to take just derivative of that function. For example, if you have 2x, so 2 will be out and the derivative of x is 1, so answer will be 2. And the third formula is that if you have two functions, if you add or subtract them, if you take the derivative of the combined function, so it's the same if you take the derivative of them individually and then you add or subtract them. Like for example, if you have a function 2 and then you have x, so you have two different functions, this is f and this is g, and if you want to take their derivative, so this derivative of first function is 0 and derivative of this second function x is 1, so the answer will be 1. The chain rule is that, for example, if your this function is not function of x, is function of some other function like composition function. For example, your function is like this. For example, in power rule, x minus 1 square, you know that the power rule, first let me explain the power rule. Power rule is that if you want to take the derivative of power of some x, like x power 3, x power, for example, 3, if you want to take its derivative, so what's the rule, what's the power rule? This 3 will come here and then you will reduce its power by 1, so 3 minus 1 will be 2, so that is the power rule. Okay, but here your f of x is just x. Okay, just fy is just is a function of x. But now in this case, if you see, this is not your x, so your f is not just x, it's just some another function of g. So here we have to use the chain rule. And what is the chain rule? Chain rule says that first just take the derivative of f. Okay, forget about this g, so because we are taking the derivative with respect to g, and then you have to take the derivative of the inner function separately with respect to x. Or in other word, you can say that the derivative of this whole thing is derivative of f and then this derivative of inner thing. For example, here in power rule, if I have x minus 1 cube, if I want to take its derivative, so first we will apply the power rule. We will forget about whatever inside here, just apply the power rule. What is the power rule? The power will come here and then we will write whatever we have inside, and then the power will be reduced by 1, and then this is this part, we took the derivative of this f. Now we have to take the derivative of the inner function. What is our inner function in this case? X minus 1. So what is the derivative of x? X is 1 and derivative of 0 is 1, so 1 minus 0 is 1, so 1 will be multiplied here. But for example, here if we have x squared, so here it will be multiplied by 2x. Okay, so that was the power rule. And then derivative of square root of x, we already have proved in the part of derivative by definition that its derivative is 1 over 2 square root of x. And the product rule, what's the product rule? Product rule is not just like summation or subtraction. It's not less. For example, if you have two function f and g, if they are being multiplied, so the derivative is just not like that. If you take the derivative of first and take the derivative of second and then multiply them, this is not the rule. Okay, for summation and subtraction, yes, this is the rule. मीन कि आप उसको अलग अलग डेरिवेटिव लेके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो. बट हेयर इन द केस ऑफ प्रोडक्ट एंड इन द केस ऑफ डिवीजन, दैट इज़ नॉट द रूल. सो व्हाट्स द रूल देन? रूल ये है, फर्स्ट यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू फंक्शन और आपने इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो आपने 1 by 1 लेना है. व्हेन यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ f, एट दैट टाइम यू आर नॉट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ g.
So first you will take the derivative of f and you will multiply by g, and then summation sign, and then you will not taking the derivative of f, but you will be taking the derivative of g. मतलब फर्स्ट पहले आपने पहले का लेना, दूसरे का नहीं लेना, ठीक। फिर आपने पहले का नहीं लेना और दूसरे का डेरिवेटिव लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो दिस रूल इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। और ये दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। इफ़ यू हैव 3 फंक्शन तो सेम वही रूल अप्लाई करना है। पहले आपने फर्स्ट का लेना है, इन दोनों का नहीं लेना, फिर आपने दरमियान वाले का लेना है, इन दोनों का नहीं लेना, फिर आपने लास्ट वाले का लेना है और इन दोनों का नहीं लेना। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है? अब इफ़ यू हैव 2 फंक्शन और ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल में है प्रोडक्ट रूल की तरह। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट हेयर यू हैव नेगेटिव साइन बिटवीन दैम। इट्स मीन पहले आपने एफ़ का लेना है, जी का नहीं लेना, फिर एफ़ का नहीं लेना, फिर जी का लेना, और यहाँ दरमियान में माइनस साइन। एक ये डिफरेंस है। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर। ओके, ये दो डिफरेंस है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में। नेगेटिव साइन है दरमियान में और नीचे डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर। ओके, एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ये हमने प्रूफ भी किया था बाय डेफिनेशन में, इट्स -1/x स्क्वायर्ड। और यहाँ पर अगर x की जगह सम फंक्शन ऑफ f हो तो वही रूल अप्लाई होना है, -1/x की जगह f(x) स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, f का डेरिवेटिव, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ है। बस याद रखो चेन रूल में क्या है कि आपने रूल वही अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, ये वाला मतलब रेसिप्रोकल वाला लग रहा है, ये लग रहा है, जो मर्जी लग रहा है, रूल पहले अप्लाई होना है। उसके बाद आपने जो इनर फंक्शन है, यहाँ पे तो x है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। यहाँ पे देखना x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। लेकिन अगर यहाँ पर x की जगह कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होना, दैट इज़ द चेन रूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं x नीचे x की जगह यहाँ पर कुछ और हो, x ये अगर x की जगह ये हो 1 - x हो और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, पहले रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है, -1/x स्क्वायर, यानी -1 नीचे जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर होगा, ठीक। ये तो हो गया रूल अप्लाई हुआ है। उसके बाद अब जो अंदर वाली चीज़ है इसका डेरिवेटिव साथ यहाँ आना है। 1 का डेरिवेटिव 0 एंड -1 का -1, दैट -1 विद दैट -1 विल बी +1। सो 1/1 - x होल स्क्वायर। ओके, सो दोबारा देख लेते हैं इनको। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। समेशन और सब्ट्रैक्शन में आप डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। चेन रूल क्या है कि अगर आपके पास x की जगह इफ़ यू हैव सम अदर फंक्शन, सम फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, तो आपने उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना, सिर्फ ये फ़र्क है। मतलब आपने इस f का, जैसा f के अंदर एक और फंक्शन g है, तो उसी तरह आपने पहले f पे रूल अप्लाई करना है, फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है। सिर्फ बस ये चेन रूल है। पावर रूल में क्या होता है, पावर नीचे आता है और पावर जो है पावर में से एक कम हो जाता है। अगर यहाँ पर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x है तो बस उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। और स्क्वायर रूट ऑफ x का 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अगेन यहाँ पर अगर x की जगह कुछ और हो, ठीक, तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या है, फर्स्ट यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यू विल नॉट बी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड एट दैट टाइम। और दूसरे टाइम आपने फर्स्ट का नहीं लेना और सेकंड का लेना है। क्वोशिएंट रूल भी सेम इसी तरह, यहाँ पर बस माइनस साइन है और नीचे डिवाइड हो रहा है gx का होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल इज़ इनफैक्ट द प्रोडक्ट रूल। मतलब क्वोशिएंट रूल को अगर आप यूँ लिख लो ना, f(x) और g को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाओ तो ये असल में वही आ जाएगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल असल में प्रोडक्ट रूल से ही ड्राइव हुआ होता है। और 1/x का -1/x स्क्वायर। और अगर यहाँ पर x की जगह कोई और फंक्शन है, मतलब 2x है, 3x है, जो भी है, तो उसका डेरिवेटिव रूल तो यही अप्लाई होगा, लेकिन फिर उस 2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। जस्ट रिमेंबर इन द चेन रूल, ये जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं ये x के लिए बताए हैं। अगर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x हो, लाइक 2x हो, 3x हो, x स्क्वायर्ड हो, बस आपने ये याद रखना है उस x स्क्वायर्ड, उस 2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना है, बिकॉज then you will be using the chain rule in that. Okay. The derivative of trigonometric function, this we have
ऑलरेडी प्रूव्ड इन दी आवर पार्ट 1 डेफिनेशन बाय डेरिवेटिव। अब लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सीकेंड स्केयर, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्केयर, सीकेंड का सीकेंड इंटू टैन, कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट। और अगर यहाँ पर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x है, ठीक, तो रूल वही है कॉस ऑफ, यानी यहाँ पर कोई एंगल x की जगह 2x है तो डेरिवेटिव उसका आएगा कॉस ऑफ 2x, ठीक, कॉस ऑफ द सेम एंगल कॉस ऑफ 2x, और साथ मल्टीप्लाई होगा आपका एफ डैश। यहाँ पे आई थिंक एफ ओवर डी एक्स मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मिस हुआ है, ठीक। तो असल में उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये डेरिवेटिव किसका है, इस एंगल का, वो बाहर लिखा है, और ये कॉस ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो यहाँ सबके साथ ना ये डी एफ ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक, यहाँ पे तो हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, जस्ट प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि x है, चेन रूल भी नहीं लगना, कोई x टू x नहीं है, कुछ समथिंग एल्स नहीं है, जैसे x की पावर 6 है। तो रूल क्या है, पावर नीचे आएगा, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, 6 - 1 5, और फिर इस x का जो बेस होता है, बेस हमेशा वो होती है जिसकी वो पावर होती है, इसका डेरिवेटिव साथ आता है, दैट इज़ द चेन रूल। लेकिन x का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें जस्ट 6x 5, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट आप देख लो, सेम उसी तरह, -4x, फिर एक कम हुआ, -4 - 1 विल बी -5, ठीक, और x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ x का बताया था, याद रख लो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, अगर भूल जाए तो आप उसको निकाल भी सकते हो। x स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन के x की पावर 1/2, इफ़ यू यूज़ द पावर रूल हेयर, power will come here and then you will reduce 1 from power, 1/2 - 1 will be -1/2, और x का डेरिवेटिव तो 1, और ये पावर नेगेटिव है, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर भूल जाए तो आप उसको यू कैन इवेल्युएट इट। सिमिलरली 1/x का डेरिवेटिव था -1/x के लिए, लेकिन ये भी अगर भूल जाए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो भी आप यू कैन इवेल्युएट। आप x की पावर -1 और उसका डेरिवेटिव, पावर रूल लगाओ, -1x -2, सो -1/x², डेट्स वाई 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। दोनों में पावर रूल यूज़ होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पावर रूल। यहाँ पर भी 1/x का डेरिवेटिव -1/x² क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पावर रूल। नेक्स्ट वाले में भी आप पावर रूल अप्लाई करो, 3x, ये -4 हो जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी ना। अब 3 तो कांस्टेंट है, -3 वो वैसे ही रहेगा। अब इसमें रूल अप्लाई करो, -4 नीचे आ गया, x पावर में से कम हुआ, 4 इंटू दिस -4 इंटू -3 इज़ 12, एंड 12 डिवाइडेड बाय दिस x पावर -5, क्या। एंड सिमिलरली ये सारे पावर रूल हैं, ये सिंपल हैं, यू कैन सी दैम। यहाँ पे देखो ज़्यादा सारी टर्म्स हैं, तो हर टर्म का अलग अलग रूल वही है सारा, तो इसमें कोई चेन रूल नहीं है, तो बस सिंपल है। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 10 11 में, दिस इज़ द चेन रूल विद पावर रूल। पावर रूल के अंदर चेन रूल है। सबसे आप देखो, जब भी होल पावर हो ना, रिमेंबर आपने पावर रूल लगाना है सबसे पहले, ठीक है। अगर होल पावर है किसी भी चीज़ की, यहाँ पे आप देखो होल पावर है, तो होल पावर से आपको आइडिया मिल गया, सबसे पहले पावर रूल लगना। आप अंदर वाली चीज़ भूल जाओ, यहाँ पे अभी चेन रूल है क्योंकि x की जगह कुछ हो रहा है, ठीक। तो पहले पावर रूल अप्लाई करो। पावर रूल क्या होता है, यानी इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है, सॉरी, सो पावर रूल में 5 नीचे आएगा, देन जो कुछ यहाँ पर है, दिस इज़ द बेस। जिस चीज़ की पावर होती है, रिमेंबर दिस इज़ ऑलवेज अ बेस, तो बेस पूरे का पूरा रिपीट होगा। फिर क्या होगा, जो पावर में से एक कम होगा, 4 हो गया। अब यहाँ तक डेरिवेटिव लिखूँ तो ये गलत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट कंप्लीट। we have applied the power rule only but not completely, because इसमें चेन रूल भी अप्लाई होना है, बिकॉज इनसाइड द पावर जो बेस है, दैट इज़ नॉट x इन दिस केस, इज सम अदर फंक्शन ऑफ x, तो यू हैव टू यूज़ द चेन रूल। तो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना है, इस अंदर वाली चीज़ का बेस का डेरिवेटिव, ओके। तो बेस का डेरिवेटिव में 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 4x, कैसे, 2 यहाँ पे और ये 2 नीचे आया क्योंकि इस पर फिर पावर रूल लगा, 4x, और अगली टर्म है 5x, उसका डेरिवेटिव है 5। तो ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होनी है। यहाँ पर आप देखो ना,
ये और ये डैश मीन के इसका डेरिवेटिव अभी लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने डैश उसके ऊपर नहीं लिखा। ठीक, सेम इसी तरह 11 में भी पहले आपने पावर रूल लगाया इस पे, देखो यहाँ पे पावर रूल लगा और फिर ये अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ आना है और उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 2x - 4 और 6 का 0। सिमिलरली सेकेंड टर्म 3 नीचे, पावर में से 1 कम और अब बस अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है। 2x - 5 का डेरिवेटिव 2x का 2 और 5 का 0। ओके, ये सारी एग्जांपल्स इसी तरह हैं, यू विल सी देम। फॉर एग्जांपल 13 आप देख लो, पावर पहले नीचे आया, पावर में से कम हुआ, ठीक, उसके बाद ये जो अंदर बेस है इसका डेरिवेटिव साथ आना है, या डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका लिया 2x³ का 6x² और इस वाले का डेरिवेटिव, अच्छा इसका डेरिवेटिव ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, 3x4 - 2 का डेरिवेटिव लेना है ना सेकेंड टर्म का। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे भी तो स्क्वायर रूट ही है लेकिन x की जगह ये समथिंग है, तो रूल वही अप्लाई होने हैं। अगर x की जगह आपके पास कुछ और चीज़ है तो रूल पहले आपने वही x वाला अप्लाई करने के बाद सिर्फ ओनली डिफरेंस इज़ दैट आपने उस अंदर वाली चीज़ का, जैसा x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है जो कि इस केस में 1 है। अब इस केस में 1 नहीं है ना, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव समथिंग एल्स है, तो वो बस साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रूल क्या है, 1/2 जो कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, ये तो हो गया रूल। अब जो कुछ अंदर है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है, साथ या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12x³ और -2 का तो 0, तो 12x³, ये इसके साथ कट जाएगा तो 6x³। ठीक, तो ये इसलिए ये 6x³ ओवर ये लिखा हुआ है। सेम इसी तरह ये है, इसको मैं पहले ऊपर ले आई हूँ, पावर नेगेटिव हो गई है, दैन उसमें पावर रूल अप्लाई हो गया। पावर रूल अप्लाई होने के बाद चेन रूल, क्योंकि इस बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना है। बस जहन में बैठा लो, जब भी आपका पावर रूल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, अगर x की जगह सम अदर फंक्शन ऑफ x है तो उस अदर फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना है। ठीक, ये एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह आप कर लो। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेन रूल अप्लाई हुआ है। यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज़ कॉस, लेकिन यहाँ पर साइन x नहीं है 2x है, तो पहले रूल अप्लाई करो। क्या है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस ऑफ द सेम एंगल, जो एंगल यहाँ पर है वही लिखोगे। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस, रूल पहले हमने अप्लाई कर दिया, अब चेन रूल। अब ये जो एंगल है इसका भी डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है। एंगल क्या है, 2x का डेरिवेटिव 2, वो साथ मल्टीप्लाई होना है क्योंकि x की जगह वी हैव 2x। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई ना कर देना, ये इस होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 इसके बाहर है, 2 cos ऑफ 2x इस तरह से है। ठीक, सिमिलरली आप यहाँ पे देखो tan ऑफ दिस एंगल, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल, जो भी एंगल यहाँ पर है। अब उस एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है, उस एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि x की जगह यू हैव सम अदर थिंग। तो 2x² + 5x का डेरिवेटिव 4x + 5, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई, एंगल के साथ ना मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज़ बिफोर, इसलिए हम उसको पहले लिख देते हैं ताकि आप ये एंगल के साथ ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद द होल दैट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नॉट विद इट्स एंगल। ठीक, वो जो डेरिवेटिव का जो लेते हैं, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके एंगल के साथ नहीं हो रहा होता, इसलिए हम उसको पहले लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिमिलरली हेयर सीकेंट 2x, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट इंटू tan, तो ये तो हो गया सीकेंट का डेरिवेटिव, सेम एंगल, सीकेंट ऑफ सेम एंगल इंटू tan ऑफ सेम एंगल। अब उस एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² का डेरिवेटिव 4x को हमने पहले लिख लिया। ठीक, सिमिलरली कॉट का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल एंड देन एंगल का डेरिवेटिव इज 10x, और वो हमने पहले लिख लिया ताकि इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली आप देख सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जिस तरह आप ये एग्जाम्पल 22 में देखो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर फिर साइन है और साइन का एंगल x² है। तो पहले हम बाहर से स्टार्ट करेंगे, बाहर साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक, कॉस ऑफ द सेम एंगल मीन के ये जो एंगल इसके अंदर है, ये देखो ना, ये साइन का एंगल है इस वक्त। ठीक, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ द सेम एंगल, ये तो अपने साइन का डेरिवेटिव लिया। उसके बाद क्या होता था, जो एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है,
ठीक। तो अब हमने जहाँ पे डैश है उसको सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व हो गया। अब जहाँ पर ये डैश है अब हमने सिर्फ इसको ओपन करना है, ये चीज़ तो एज इट इज़ रिपीट होगी। अब ये कॉस है और ये उसका एंगल है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ द सेम एंगल, और फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि अब उसका एंगल का डेरिवेटिव क्या था, ये चीज़, इसलिए यहाँ पर अभी डैश। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ रिपीट होगी। अब साइन ऑफ दिस थिंग, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ दिस थिंग, और फिर उस दिस थिंग का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक। अब 2x² का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, 2x, वो 2x मैंने पहले लिख लिया। तो अब देखो अब ये डैश साइन का किसी के ऊपर नहीं है, तो अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। बस याद रखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसका डेरिवेटिव का रूल जो भी है, साइन का जैसा कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, वो जब अप्लाई करोगे तो साथ एंगल का डेरिवेटिव साथ ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, अगर एंगल x के अलावा कुछ है। अगर x है तो x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करें ना करें वो तो एक ही बात है। ठीक। अब प्रोडक्ट रूल में क्या है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आपने पहले का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का नहीं लेना। देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन बट नॉट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे आप डैश लगा लोगे ना, आपको इजी हो जाता है कि किसका लेना है। तो जब आपने सॉल्व करना होता है सिर्फ वो टर्म सॉल्व करनी होती है जिसके ऊपर आपने प्राइम लगाया होता है, मीन के जिसका डेरिवेटिव लेना है। तो 3x + 1 का डेरिवेटिव 3, बाकी चीज़ एज इट इज़। अब इसके ऊपर कोई डैश नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव 4x, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो दिस वे में। तो प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी इजी। यहाँ पर आप देख लो, प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका नहीं लेना, फिर फर्स्ट वाले का नहीं लेना, सेकंड वाले का लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले फार्मूला लिखा है उसका, फिर अब मैंने फर्स्ट वाले का लेना है, तो बाय पावर रूल 4 नीचे आया, पावर में से कम हुआ। ठीक। अब साथ देखो ना उस बेस का डेरिवेटिव, क्योंकि x नहीं है ना अंदर, x के अलावा कुछ समथिंग है, तो उस अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना। अभी मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रिपीट हुआ, दोबारा ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रिपीट हुआ। ये सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड के डेरिवेटिव में यू हैव 2 टर्म्स, फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव दिस वन एंड द सेकंड वाले टर्म का डेरिवेटिव दिस वन। ये तो सारा कुछ सॉल्व हो गया है, सिर्फ अब डैश इधर है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना। ठीक। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 14x6 - 2x इस टर्म का। सिमिलरली ये 3 फंक्शन है, पहले आपने इसका लेना है, इन दोनों का नहीं लेना, फिर आपने दरमियान वाले का लेना है, फिर आपने एंड वाले का लेना। और डेरिवेटिव बस जब जहाँ पर ये डेरिवेटिव साइन है इसको बस सॉल्व कर लेना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रिपीट होंगी। यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट रूल, पहले x4 का डेरिवेटिव लेना है, साइन का नहीं लेना, फिर आपने साइन का लेना है, x4 का नहीं लेना। x4 का डेरिवेटिव 4x³ साइन x एज इट इज़, फिर x4 एज इट इज़, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज़ कॉस। यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, x² है, साइन x है, कॉस x है। पहले x² का ले लेना, फिर साइन का और फिर कॉस का। यहाँ पे कुछ फार्मूला इनमें यूज़ हुआ ये डेरिवेटिव लेने के बाद 2 sin x cos x 2 sin 2x के इक्वल होता है, और cos² - sin² cos 2x के इक्वल होता है। तो वी जस्ट रिप्लेस दैम। नाउ इज अ क्वेश्चन रूल में क्या होता है, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है, नीचे वाले का नहीं होता, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, एंड देन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक। अब जहाँ जहाँ पे ये डैश है बस आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, बाकी जस्ट रिप्लेस कर देना। ठीक। अब ये जैसा 1/x का डेरिवेटिव, यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ 1/x - 1/x²। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x यू हैव सम फंक्शन ऑफ x, तो उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव साथ से मल्टीप्लाई होगा। तो रूल पहले क्या है, -1/, जो भी कुछ अंदर है उसका स्क्वायर। अब इस 5x - 3 का डेरिवेटिव सिर्फ साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक। इसमें भी आप 3 कांस्टेंट है उसे बाहर लेके जा सकते हो, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दो। बेशक क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करना, यही वाला रूल अप्लाई कर दो कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। x क्या है, जो कुछ यहाँ पर नीचे है, तो अब -1 इस नीचे वाले का स्क्वायर, और ये ऊपर क्या आया हुआ है, ये असल में इसका डेरिवेटिव, ये जो इसका डेरिवेटिव साथ जो साथ मल्टीप्लाई करो या ऊपर लिखो, एक ही बात है। तो ये भी इसी तरह है, ये आप सारे देख सकते हो। ठीक है, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस, लेकिन अगेन आपने इसको रीड नहीं करना, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। और फिर आप इसमें से देख सकते हो कहाँ आपने मिस्टेक किया, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा आपको। ठीक, ये सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी दैम।
यहाँ पर चलें कोई एक दो रीड कर लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये भी उसी तरह दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले आप पहले का डेरिवेटिव ले लो, सेकंड का नहीं, एंड देन यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन बट नॉट द फर्स्ट फंक्शन। बट यहाँ पे अभी हमने फार्मूला लिखा। आफ्टर दैट जहाँ पे आपके पास ये डेरिवेटिव का ये जो साइन लिखा हुआ है प्राइम, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे तो इसको सॉल्व किया, आ गया -5x - 6, क्योंकि पावर नीचे आया, पावर में से कम हुआ और x का डेरिवेटिव 1 साथ है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे दोबारा क्वोशंट है अंदर, तो इस टर्म के लिए दोबारा क्वोशंट टर्म यूज़ हुई है, क्वोशंट रूल यूज़ हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल 38 में पहले पावर रूल, 2 नीचे आया, पावर में से कम हुआ, अब जो कुछ फंक्शन यहाँ पर है उसका डेरिवेटिव अलग लेना है। अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्योंकि यहाँ पर क्वोशंट फैक्टर में है तो इसका क्वोशंट रूल के थ्रू डेरिवेटिव अलग से लिया। ठीक, तो सम टाइम प्रोडक्ट के अंदर क्वोशंट यूज़ हो रहा होता है, पावर के अंदर प्रोडक्ट क्वोशंट, यानी बस आपने रूल अप्लाई करना है। बस आप जहन में बैठा लो, पहले आपने जैसा पावर रूल है पहले आपने मेन रूल अप्लाई करना है, जैसा यहाँ पे होल पावर है तो हमेशा पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई होने के बाद ये जो कुछ बेस है, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में एंगल, इस केस में बेस, तो उस बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई ज़रूर होना है। ठीक, तो अगर इफ़ यू हैव योर फंक्शन इज़ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उस केस में किसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना है? एंगल का। ठीक है, एंगल उस केस में जो हमारा x होता है वो एंगल में होता है। बट अगर पावर रूल में है तो आपने किसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है? ये जो बेस है, x का जैसा डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2x है तो 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये एग्जांपल सिंपल है। जो f(2) गिवन है, f'(2) गिवन, फंक्शन क्या है ये नहीं हमें पता, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि जब हम उसमें 2 पुट करें तो उसकी वैल्यू 3 है, और उसके डेरिवेटिव में जब 2 पुट करें तो उसकी वैल्यू 1/4 है। हमने फाइंड करना है उस फंक्शन को, जो हम फंक्शन हमें नहीं पता, उस फंक्शन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ और उसका डेरिवेटिव लूँ और उसमें 2 पुट करूँ, एट 2 का मतलब है यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ पे भी 2 हो, ये चीज़ फाइंड करनी है कह रहा है। ठीक, तो पहले अगर हम फार्मूला लिख लें, इसका फार्मूला ओपन कर लें बाय प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है, एक x है और एक f(x) है। फार्मूला लिख लें, x का डेरिवेटिव लेना है, f का नहीं लेना, प्रोडक्ट रूल। देन द डेरिवेटिव ऑफ f नॉट x का डेरिवेटिव 1 होता है, f(x) आ गया, लेकिन f(x) का डेरिवेटिव क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है तो उसे हम f' ही रहने देंगे। ये तो हमने फार्मूला ओपन किया। अब 2 पे कह रहा है तो हमने 2 पुट कर दिया। ठीक, इसमें x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया f(2), 2 f'(2). फंक्शन का हमें नहीं पता था, लेकिन उसने f(2) की वैल्यू दी हुई थी 3 है, तो वो हमने पुट कर दिया 3। f'(2) की वैल्यू वाज गिवन 1/4, तो 1/4 इंटू 2 विल बी 1/2 and 3 plus 1/2 will be 7/2. So the answer is 7/2. And the same is the next example or last one. How to find the equation of tangent line? If you remember, in the first part of our this chapter we solved the equation of tangent line, but वहाँ उस केस में if you remember हम derivative by definition निकाल, फार्मूला तो वही है, फार्मूला वही है। क्या था फार्मूला? y minus f of a, ठीक, f' a इंटू x माइनस a कौन सा होता है? जिस नंबर में ये जो x है ये a है, और ये 2 असल में क्या है? ये f of a है। ठीक, मतलब f of -1 है 2। अगर ये ना भी गिवन हो तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे तो अगर कह देता है ना x इज इक्वल टू 1 और ये 2 गिवन ना होता, यू कैन फाइंड इट। -1 गिवन है और ये 2 गिवन ना होता, तो आपने f of -1 को इसमें पुट करना था इसमें, तो यहाँ से आप देखोगे 2 ही आएगा। ठीक, तो वो जो सेकंड है वो दैट इज़ y, और वो कहाँ से आता है? अगर आप x को उस फंक्शन में पुट कर दो। तो ये फार्मूला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और हम डेरिवेटिव निकाल के जो हमने उस पॉइंट पुट करते थे, डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन निकालते थे इन द फर्स्ट पार्ट। बट हेयर सिंस वी हैव लर्नड द टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सो यहाँ पर यू विल यूज़ दैम डायरेक्टली। यहाँ पर आपको बाय डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपका ये f है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल लो, 2x³ का 6x² माइनस 3x का 3 और 1 का 0, तो ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट किया, f' ऑफ -1 3 आ गया, और f ऑफ -1 तो 2 है,
अब ये फार्मूले में सारा कुछ पुट कर दी इसकी वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। ओके।